بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی ڈھال چال ہے اس میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کبھی کل کے دوست آج کے دشمن بن رہے ہیں، اور دشمن تو پہلے ہی دشمن ہوتے ہیں، لیکن ہر طرف سے طریق انصاف کو دیوار کے اندر چننے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ پیپل پارٹی ہو، وہ نون لیگ ہو، وہ کی اور چوچو کو مربع والی جماعتیں ہوں، سب یہی کہتی ہیں کہ یہ عمران خان اور اس کی پارٹی الیکشن میں نہ آئے تو ہم الیکشن جیت جائیں۔ تو بھائی وہ کیوں نہ آئیں؟ وہ تو آئیں گے، تو آپ الیکشن ہی نہیں کروائیں گے۔ جب تک عمران خان کے ساتھ ووٹر ہیں آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور یہی نظر آ رہا ہے۔ اب تو مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے سرکردہ ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ راجہ ریاض صاحب نے بھی قومی حکومت کی بات کی ہے، اس طرح اور بھی بڑے لیڈران قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن عوام الناس بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب یہ بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں تو مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان نگرانوں نے چلو کچھ نہ کچھ، اگر لوٹ مار والی بات نہیں تو کوئی ایسے کام نہیں کر رہے جس کی بنیاد پر عوام پریشان ہوں۔ تو اس لیے عوام الناس میں اگر مائک لے کے کہیں جاتا ہے تو 10 بندے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے، 6 بندے جو ہیں وہ 5 جو کہتے ہیں ہم پی ڈی اے کو دیں گے، ایک کہتا ہے ہم نون کو دیں گے، ایک کہتا ہے ہم اپنے ٹی ایل پی کو دیں گے۔ یہ ریشیو ہے ساری، اور پیپل پارٹی کے بھی کہیں کہیں لوگ آتے ہیں نظر، وہ کہتے ہیں ہم ان کو دیں گے۔ تو اس لیے، اور نہ ہی الیکشن مہم شروع ہے، اور نہ بھی ابھی الیکشن کمیشن نے کوئی شیڈول دیا ہے۔ ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے صرف 8 فروری، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ تو جب کہ ڈیٹ اناؤنس ہوتے ہی یہاں سیاسی سرگرمیاں شروع ہو جانی چاہیے تھی۔ اب زرداری صاحب اور ان کے بیٹے میں کچھ اختلافی نوٹ چل رہے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ نورا کشتی ہے یا کہ کچھ ہے، مجھے تو نورا کشتی لگ رہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی بڑے بڑے جو ہمارے پیش گوئیاں کرنے والے جرنلسٹ انہوں نے بھی یہ کہا کہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، قومی حکومت نظر آ رہی ہے۔ تو امداد حسین شہزاد صاحب جو ہمارے ساتھ آج اس وقت موجود ہیں، ان سے بھی میری تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ مجھے تو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو میں آپ کو آج کے اس پینل میں جو میرے ساتھ شامل ہیں ان کا تعارف تو کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب ہی ماشاءاللہ نامور شخصیات ہیں، اور ان میں ہے میرے ساتھ امداد حسین شہزاد صاحب جو کہ لندن سے اپنا ڈیلی پروگرام کرتے ہیں۔ میں امداد حسین شہزاد صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امداد صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ جی بالکل، بہت شکریہ احسان ناز صاحب، آپ سے انوائٹ کرنے آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ نے بڑا شاندار بڑا انفارمیٹو پروگرام کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں لندن سے بات رہتا ہے کہ آپ کا کب منڈے آئے گا، کب آپ کا یہ پروگرام۔ تو میرے ساتھ دوسرے مہمان ہیں جناب مقیم احمد خان صاحب، وہ بھی لندن سے پروگرام کرتے ہیں اور بڑے نامور صحافی ہیں۔ میں جناب آپ کو بھی اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم جناب، ویلکم۔ تو میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جو اس وقت پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو ابھی بھی پکڑا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کے تمام مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں۔ ڈیلی کو نہ وہ خبر آتی ہے یہ اس کا مقدمہ ختم کر دیا گیا۔ ابھی وہ فواد صاحب کا بھی آج مقدمہ ختم کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ان کے جو اثاثات ہیں نا وہ بالکل ان کی آمدنی کے مطابق ہے۔ اب جس کو پکڑنا ہو اس کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں، جس کو چھوڑنا ہو اس کا برابر کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سلسلہ ہے پکڑ دکڑ کا، یہ بھی رکے گا کہ نہیں رکے گا، اور الیکشن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں یا ابھی کچھ اس میں کسر باقی ہے؟ جی مقیم احمد صاحب۔ دیکھیے، انتخاب تو ہوگا، اس کی ریزننگ اب اس وقت ہم صرف اسیس کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں اس کے حق میں جا رہی ہیں یا کون سی اس نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کا بالکل واضح حکم نامہ تھا کہ 8 فروری کو انتخاب کرایا جائیں۔ انہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو آن بورڈ کیا، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کی میٹنگ ہوتے ہوئے بھی دیکھی، پھر ان کا جواب واپس
आते हुए भी देखा और उसकी कंफर्मेशन भी सुप्रीम कोर्ट ने की। तो अब यह है कि यहां से तो भागना मुमकिन नहीं है। नहीं अब मुकीम साहब, यहाँ मेरा एक सवाल, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होंगे, फलां डेट को होंगे, कुछ नहीं बना था। देखिए, अब उस इदारे की भी तो कोई साख, रेपुटेशन, कोई हिस्ट्री है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि एक मर्तबा अगर किसी ने अदालती हुक्म की हुक्म अदूली कर दी तो आप उसको रिवायती बना लेंगे या उसको आप सीरियस ही नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखिए, इस तरह तो मजाक आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक, अभी तो मेरे ख्याल में किसी न किसी को तौहीन अदालत के उसमें कटहरे में जरूर लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान होगा अदालती निजाम पे कि जिस वक्त वाज़ेह तौर पे जजेस हजरात ये फरमा रहे हैं कि ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है, अदालत आलिया के हुक्म की वो जो है तौकीर नहीं रखी गई, तो कुछ तो करके दिखाएगी अदालत, या बताएगी कि हम जिंदा हैं, या वो दूध पी के सो जाएगी। ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब में, ठीक, और मेरी भी यही है। दूसरा ये है कि आपका फरमाना कि नहीं होगा, बहुत सारे लोग इस पर भी क्या सराही कर रहे हैं। उनका मतलब जो सेटअप लाने वाले थे उनका जो बुनियादी खाका या खद्दो खाल उन्होंने बनाए थे वो ये था कि जी पीटीआई की क़यादत जो है वो इलेक्शन में ना हो, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे ना हो, इलेक्शन कमीशन में पीटीआई रजिस्टर न रहे। वो सारी चीजें इस वक्त तक हुई नहीं। इसके बावजूद उनके 250 जो टॉप के रहनुमा थे पीटीआई के, वो इस वक्त या तो पार्टी में नहीं है या दूसरी जमातों में शामिल हो चुके हैं, और या फिर मफरूर हैं, और या फिर जेल में है। तो इस पोजीशन उनका इलेक्शन शामिल होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वोटर क्या रिएक्ट करेगा कि क्या वो इस सूरत हाल में जिस वक्त कोई काम का या नाम वाला या कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं होगा तो बिला वजह किसी दुम्बे या खंबे के ऊपर वोट डाल आएगा? आई डोंट नो। उसके बाद जो हमारी रिवायात हैं खासतौर पर देहाती इलाके में जिसका लड़ा मजबूत ना हो, वो लोग यही देखते हैं हवा का रुख कि यार ये जीतेगा या नहीं जीतेगा, कतई नजर इसके कि वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट। लेकिन हो तो काफी हद तक ये भी एक एलिमेंट है, तो हम इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अब ये देखने वाली बात है कि 30 नवंबर को शेड्यूल अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन या नहीं करता। उसके अलावा मतलब वो लोग मौसम की शिद्दत का भी बयान कर रहे हैं, लोग ये भी बता रहे हैं कि जनाब वो मुआशी इमरजेंसी लग सकती है, कानून में गुंजाइश है, फलां साहब खौफजदा हैं, फलां साहब। खान साहब, हम अब अमदाद हुसैन शहजाद साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो मैंने उनको बुलाया, वो नीचे आए हैं, तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। अमदाद हुसैन शहजाद साहब, आप ये सुनाएं कि आपका क्या सोर्स है, ये क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कौमी हुकूमत बन रही है और उसमें वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ खुर्शीद कसूरी को बनाया जा रहा है। ये सारी बात ज़रा कौम को बताएं कि कौमी हुकूमत बनने की क्या इम्कानात है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके सब बहुत शुक्रगुजार हूँ। बड़ा काम है सब साहबान का तो मेरे साथ आप प्रोग्राम ठीक है, जायका भी बड़ा काम है। किसान साहब, असल बात यह है कि सहाफ़ी का काम है 2-3 रिसोर्सेज है जहाँ पे वो खबर आ सकता है। एक उसके सोर्सेज है, एक इशारा है, और एक हालात वाक़यात। तो जो हालात वाक़यात हम पहले बात करें तो इस वक्त तो हालात वाक़यात ऐसे नजर नहीं आ रहे कि इंतखाबात होने चाहिए। एक तो ये है कि कंपनी ने जो प्रोग्राम शुरू किया था वो बढ़ गया और अच्छी तरह बढ़ गया। तो उनको ये पता चल गया कि जिसको वो लेकर आना चाह रहे थे वो अपनी अवामी मकसूदियत खो चुके हैं, और ये लंदन में बैठकर कंपनी को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा भाई तो नाकाम हो गया, ये हो गया, लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूँ, मैं आऊंगा तो मैं जो हालात ऐसे बदल दूंगा। अवाम का एक समंदर है जो कदम बढ़ाओ नवाज की, हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे चल पड़ेगा। और आगे ही जो सूरत पैदा हुई, जो परवाना साहब को मार पड़ी, और जहाँ भी जा रहे हैं वहां पर भी जहाँ जहाँ जाते हैं इनको मार पड़ती है, और जैसा भी ये करते हैं आप सब देख रहे हैं कि अवामी मकबूलियत का इनके साथ क्या आलम है। तो अब ये लग रहा है कि कंपनी भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गई है कि इंतखाबात ना ही कराया जाए तो अच्छा है, और उसका हल जो है वो यही है कि कोई ऐसी जो गवर्नमेंट जो है वो लाई जाए। माफ कीजिएगा, मैं जरा अपना माइक कर लूं।
اور وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایسی کوئی گورنمنٹ لائی جائے کہ جو کام بھی چلاوے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مقاصد بھی پورے. اس میں یہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک قومی حکومت کا قیام جو ہے اس کی خبریں تفتیش کر رہی ہیں, کیا سرائیاں بھی ہیں, بلکہ یہ کسی حد تک کنفرم ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے انتخابات کے شیڈول کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے. یہ کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ اب انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس میں جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے انہوں نے بھی یہ بیان داغا ہے کہ قومی حکومت بن رہی ہے, قومی حکومت بننی چاہیے. آدمی ہیں, بڑے انفارمیٹو آدمی ہیں اور ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی. بڑے روابط ہیں ان کے اور جن کے لیے وہ کام کرتے ہیں, جو خبریں ان کو کی جاتی ہیں وہی بولتے ہیں. راجہ صاحب کی اپنی تو کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آتی ہے بصیرت کہ جو کوئی ایسی بڑی بات کریں, جہاں سے کہا جاتا ہے وہاں سے بولتے ہیں. اور خبر اصل میں جو میں بریک کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی آنے والی جو قومی حکومت کا جو کانسیپٹ ہے اس میں اس وقت جو پاپولر ترین جو ہارٹ فیوریٹ شخصیت ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہیں جناب رشید محمود قصوری صاحب, جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, پاکستان کے نیک صاف شفاف جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں, کسی قسم کی کرپشن کا الزام نہیں ہے. عوام بھی جو ہے ایسے حالات میں جب مہنگائی روز کو بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت نگرانوں سے بھی سنبھالی دی جا رہی, ایسی قومی حکومت کو بالکل قبول کر دیں گے کہ جس کا سربراہ ایک ایسا شخص ہو کہ جس پر کسی قسم کا کوئی الزام نہ ہو اور اس کا داغ جو ہے وہ سیاسی الزامات سے پاک ہو. نہیں امداد حسن شہزاد صاحب, جیسے کہ میاں خورشید قصوری صاحب کا آپ نے ان کا نام لیا, جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کو وہ کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, اور وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں, جیسا کہ میں ان کی شخصیت سے واقف ہوں. اور اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے کے وہ یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلا جائے, سب سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے, مل جل کر خطاب سے نکلا جائے اور اس وقت سیاست کو چھوڑ کر عوام کے مسائل کی طرف دیکھنا چاہیے. امداد حسین شہزاد صاحب کہ میری ابھی چند لمحے پہلے میاں خورشید قصوری صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ ایسی قسم کی مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا جی جب آپ کو پہلے وزیر خارجہ بھی بنایا گیا تھا نا تو آپ کو کوئی اطلاع نہیں تھی. ماشاء اللہ آپ بڑے آپ کی سیاست اور صحافت کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں. ایسی کاج ہوتی ہے بعض بات کاج کو چھوٹے میں سے اٹھا کر بھی جیت جاتی ہے, اور بعض بات ایک دو روز قبل جو ہے شیروانی کا آرڈر جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور شیروانی مکمل ہو کر آتی ہے تو کہا جاتا ہے بس پہنے اور اس وقت جو ہے نا اتنے بچے اتنے منٹ پہ حلم کرانے سے کیا. اچھا امداد حسن شہزاد صاحب آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ لندن آنے سے پہلے دیا تھا, یعنی سابق فوجیوں کے خلاف, سابق ججوں کے خلاف, اب سیالکوٹ میں کل تقریر کرتے ہوئے انہوں نے پھر اس کو دہرا دیا ہے جو انہوں نے واپس لیا تھا, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ آپ نے سنے بازی کر گئی تو میاں صاحب ڈر گئے ہیں, ان کو پتہ چل کے باہر نکلوں گا تو بازی نہ کھاؤں گا, مری جاتے ہیں تو ایک اپنی بیٹی کو ساتھ بٹھا کر مری چلے جاتے ہیں. اب ان کو یہ جو ورکر کنونشن کرتے ہیں تو ایک طرف کا جو ہے وہ سکھاتے ہیں, دوسری طرف یار اس میں تو کوئی بری بات نہیں کہ انہوں نے مریم نواز کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنی والدہ کے اپنی بیگم کے یادیں ان کو تازہ کرائی, یہ بھی کوئی جرم بن گیا. اور ایک یہی شکر رہ گیا مجھے میرا مشورہ بھی ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ہی کریں کہ گھر بیٹھ جائیں یا جاتی عمرہ پہ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ گتی نشینی سنبھال دیں بیگم کلثوم نواز کی, اپنے بھائی کی اور اپنے جو ہے والد صاحب کی, اور وہاں بیٹھ کے اللہ کریں. اب ان کا کام سیاست کرنا نہیں, بار بار ایک ہی بات پر چیز کرنا, بار بار لوگوں کو بے وقوف بنانا, بار بار پاکستان کی مظلوم عوام کے جذبات سے کھیلنا. مجھے لگتا ہے کہ نصیب میں اب کتوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ ہمایوں صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. ہمایوں صاحب بہت شکریہ, ویلکم. ٹھیک سر, السلام علیکم. جی امداد صاحب آپ جاری رکھیں. تیسرا تو میں یہی کرتا تھا, مایوں صاحب تو بہت میرے سینئر اور بڑے ہی جو ہے موسٹر جرنلسٹ ہے, ان کی خبر شاید میرے سے بھی بہتر ہوگی. میں نے اپنے ذرائع کے مطابق جیسے ہی میری یہ خبر آپ اپنے ٹی وی چینل پہ چلائیں گے, یہ پہلا ٹی وی چینل ہوگا جو یہ خبر بریک کرے گا, اور اس کے بعد بہت سارے اور امیدوار بھی جو ہے وہ اس میں قومی حکومت میں شامل ہونے کے لیے اپنے راستے شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے گا ایک عجیب قسم کی ہلچل مچے گی جو کہ اندر خانے مچی ہوئی ہے, کیونکہ کسی کو بھی دیکھیں نا آپ ایک بات تو بالکل واضح ہے, نواز شریف تو الیکشن لڑ نہیں سکتے, ابھی تو ان کے کیسز چل رہے ہیں, اور وہ بھی ایسے کیسز کی نہیں ہے کہ جس میں سے راتوں رات کو پچھلے کیسز سے فارغ کر دیا جائے. وہ باقاعدہ کیسز ہیں
उनके इंटरपोर्ट अपीलें हैं, और वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन शेड्यूल से पहले जो है वो सारे मामला तय हो जाएंगे। मुझे लगता है वो तो इलेक्शन नहीं जब वो खुद भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, गालियां भी पड़ रही हैं, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया होगा कि ठीक है फिर आप ये कुछ अर्से के लिए कौमी हुकूमत बना लेंगे, मेरे पसंद का लोगों को भी उस पर ले आए, अपने पसंद का लोगों को ले आए, तो जो है वो अपना काम जो है वो चला लें। दूसरी तरफ मुझे ये भी एक्सपर्ट दे रहे हैं कि अब जो है नवाज शरीफ से आउट होने के बाद शहबाज शरीफ को ना लाने के लिए जुनैद सफदर को भी सामने लाने की बातें की जा रही है। और ताज़ा तरीन आज का मैंने अपना ब्लॉग किया है, उसमें भी ये ताज़ा तरीन खबर की है कि मरियम सत्रवान जो है अब अपने बेटे को वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के तौर पर सामने लाना चाहती हैं। अब आगे आके देखिए होता क्या, अभी तो जो है ना वो कहते हैं पार्टी शुरू हुई है, तो अभी आगे देखिए क्या होता है। नहीं इमदाद साहब आप वो ये को खानदान गुलामा की हुकूमत तो नहीं है पाकिस्तान में कि बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद उसका बेटा आगे, ये चलना ही ऐसे पॉसिबल नहीं है। ये कुछ ऐसे ही बातें होती है जो ना बेपर की। मैं आपके पास आता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं जाना है ऊपर मुझे क्लास जाती है। मैं एक बात जो अभी आपने उसको जरा आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके। ये जो आपने आसद कारी और उनका बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, ये नूरा कुश्ती है। ये बिलावल भुट्टो कारी इतनी मासूम है कि अब्बा जी के बगैर को उनकी पकड़े बगैर कहीं आगे जाके नहीं हो सकती। ऐसा सारा जो है अब्बा जी के कंट्रोल में है। बिलावल भुट्टो कारी ने मरना है और वो सॉरी भूखा मरना है, और वो जो है वो क्या अब्बा जी की नाराजगी। लेकिन ये सारी गेम जो है ना अब चूंकि उनको बड़े घर से भी सत्कार दिया गया है, तो अब ये एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। नहीं जो है ना आवाम को बेवकूफ बनाने की कहानी शुरू कर दी है। लेकिन मुझे जो लगता है कि अब जो है ना आवाम अब बड़ी समझदार हो गई है। कल आप देखिए क्या हुआ है, कल कामोकी में जंगीर सिंह खान का जलसा था, और जब वहाँ टैंकर के लोगों ने वो बिरयानी भी खा रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे इमरान खान जिंदाबाद। पंडाल पे बैठ के लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और इससे आप अंदाजा लगाएं कि लोगों का शौक के साथ तक बढ़ चुका है। या वो खाना भी खा लेते हैं, पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन वोट उन्होंने किसको डालना है वो उनके दिल के अंदर एक छुपा हुआ राज है, और वो उसको किसी पर आश्कार नहीं करते। अपने महबूब लीडर का इनाम उनकी जुबान से निकल जाता है। अच्छा इमदाद साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने अपनी क्लास में जाना है, थैंक यू वेरी मच। जी सब्जा साहब आप ये बताएं कि अब ये जो पाकिस्तान में इलेक्शनों के बारे में लोग कुछ ना कुछ ये सुन रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, कौमी हुकूमत बनेगी, आपकी इस बारे में क्या राय है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सब बाबा को, सब दोस्तों को। एहसान साहब, जब ये एक रिजीम चेंज का ये मामला हुआ था वो राइट टाइम था अगर कोई कौमी हुकूमत बनने का कोई मामला होता है। ठीक, आज कौमी हुकूमत की जरूरत है या नहीं है, आज सवाल तो ये यानी उठना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस हद तक अवाम मोबिलाइज हो चुकी है सियासी तौर पे, यानी आज का अगर टाइम देखें तो ये टाइम भी इन्होंने यानी काफी लंबा ले दिया। ये जो केयर टेकर हुकूमत थी, केयर टेकर हुकूमत का स्टार्ट अगर कुछ ऐसा होता तो कौम के लिए काबिल कबूल होता। अब इतने ज्यादा लॉलीपॉप देने के बाद, इतने ज्यादा यानी वो शक्लें और रास्ते दिखाने के बाद आज अगर ये कहें कि कौमी हुकूमत का क्या, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जायज बात होगी या कोई अच्छी बात होगी। आज तो फाइनली इन्हें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए जो जरूरत है। और अगर इसके लिए ये कहें जी कि कौम का जो मैंने कहा कि जी मोबिलाइज या थोड़ा सा निकलना या थोड़ा सा उसका वो एक बड़ी वाज़ेह निशानी पिछले वीक में, यानी इसी वीक में या पिछले वीक में कह लें, जो 2 जलसे केपीके में हुए, उसमें आपने देखा है कि किस तरह से यानी बजामत के सामने कौम अड़ी या वहां के लोग अड़े। और ये भी सुनने में आया जी, ये भी पता चला जी कि वहां से पुलिस को भागना पड़ा और बहुत बहुत बड़े जलसे हुए। यानी ये जलसे या इतना ज्यादा जब लोग बाहर निकलते हैं तो वो कोई कौमी हुकूमत के लिए नहीं निकलते, वो लोग अपने यानी उसकी वो जो एक उन्हें हक दिया जाता है अपना हक राय, यानी जो एक वोट की शक्ल में होता है, ये उसके लिए अपने आप को या अपने किसी महबूब लीडर को या अपने लीडर जिसके वो पैरवी करना चाहते हैं, जिसके वो फॉलोअर होते हैं, उनके लिए निकलते हैं। हमारे साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमायूं साहब हमें कुछ बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे। जी हमायूं साहब। एहसान साहब, अब मामला है कौमी हुकूमत का। कौमी हुकूमत कौन से मसाइल, कौन सी ऐसी चीजें हल करना चाह रही हैं जो, देखिए अगर कोई मामला इस तरह होता कि कोई अफवाह और तफहीम के साथ कोई हुकूमत बनती, कोई एक दूसरे के साथ मिलके, यानी कुछ पार्टियां या कुछ ऐसी जो नजरियाती तौर पे करीब है तो चले बात थी, या फिर
کچھ ایسا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ جی یہ سارے اب معاملہ تو سارا اس طرح سا ہو رہا ہے جی کہ عوام کا ایک بہت بڑا جمع غفیر ایک لیڈر کے پیچھے یا ایک کو چاہ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے اصولی طور پہ کہ الیکشن ہو اور آگے جو بھی ہو جس کی یعنی ایک اکثریت بن رہی ہے یا جو بھی حکومت میں آ رہا ہے اس کو حکومت دے. اور صاحب یہ سارے بند جو لگائے جا رہے ہیں نا، یہ ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اسی چیز کا پیش خیمہ ہے کہ ووٹ جن کے پاس ہیں وہ ان کو وہ لانا نہیں چاہتے. تو احسان صاحب یہ بھی تو دیکھیے نا، جن کو لانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی تو اب میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایسا کوئی فیلڈ جو ہے نا ان کے لیے جو یہ پلینگ فیلڈ لیول کرنا چاہ رہے تھے، اب وہ لیول والی وہ جو ایک سطح ہموار کرنا چاہ رہے تھے وہ تو بات رہی نہیں. اب جب سے اسرائیل اور وہاں فلسطین کا معاملہ ہوا ہے، وہ جو ایک جو مقصد تھا اس کو لے کے آنے کا وہ تو اب رہا کوئی نہیں. اس پہ تو اب لانے والے یا جس کو ہمارے مقیم صاحب بڑے یعنی خوبصورت نام دیتے کمپنی، اب کمپنی جو ہے کمپنی کو تو خود سوچ پڑی ہوئی ہے جی کہ کس طرح اس کو لے کے آئے. وہ تو خود گفتگو کا شکار ہے کس طرح، یعنی جہاں پہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں جا کے انہیں جس طرح کی پذیرائی مل رہی ہے ان حالات میں تو وہ شاید نہ آ سکے. اور باقی احسان صاحب ہے جو بات کی تھوڑا سا شعور کی، ہم مانتے ہیں کہ جی شعور اس طرح سے یعنی اگر کوئی 10% 5% آتا بھی ہے تو جس طرح سے ملیامیٹ کیا جاتا ہے یا 2-3 سال سے جو پچھلے حالات سے 2 سال سے جب سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا، جس طرح سے ہر محکمے کے احکامات کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، اس طرح کم از کم وہ شعور تو جو تھوڑا بہت آیا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. چلیے مقیمہ صاحب، خان صاحب آپ یہ بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو ابھی ہماری بحث چل رہی ہے، اگر پاکستان میں الیکشن 8 فروری کو ہوتے ہیں اور کسی پارٹی کا بازو باندھ کر کرائے جاتے ہیں تو کیا یہ عوام یا انٹرنیشنل سطح پہ اس کو قبول کر لیا جائے گا؟ دیکھیے سوال تو ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا صورت نکلے گی الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے دوران. اب اس کے ٹرائل ہوتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کی تیاری ہے، اس میں مینیپولیشن ہے، اس میں مرضی کی پوسٹنگ ہے اور انتظامیہ میں عمل دخل ہے، اس کے بعد پھر وہ عذرداریاں ہیں الیکشن میں، پھر ابھی تو کاغذات نامزدگی کے مراحل میں بڑے دلچسپ کام سامنے آئیں گے آپ کے، کیونکہ 3 پارٹیوں کے سربراہ وائل وی آر ٹاکنگ وہ نااہل ہیں، میاں نواز شریف، عمران خان اور جہانگیر ترین. ان کی قسمت کا فیصلہ اگر ہوا تو وہ بھی سپریم کورٹ کی عمارت سے ہی نکلے گا. اور اس میں جو اس سارے سیناریو میں جو یہ آپ اور امداد صاحب اور دیگر لوگوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور کر رہے ہیں میڈیا پر، پرنٹ میڈیا میں بھی آج یہی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہو سکتی ہے. اچھا، وجہ یہ حکم جو انہوں نے دیا ہوا ہے اب وہ وہاں سے کیسے جانے دیں گے، اس لیے کہ پہلا جو حکم تھا اس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا. ابھی تک ہمیں اس کا انتظار ہے کہ وہ عدلیہ کب سرخرو ہو کر عوام کے سامنے آئے گی کہ لو جی ہمارا حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تھی، ہم نے متعلقہ لوگوں کو سزا دے دی ہے. اچھا اپنے مقیمہ صاحب آپ یہ بتائیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے تو کئی چیزوں کو ہم نے کور کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اب میاں نواز شریف صاحب جب لندن سے چلے تھے ان سے پہلے وہ فوج کے عدلیہ کے خلاف باتیں کر رہے تھے اور بعد میں انہوں نے کہا جی میں نے ان سب کو اس ڈگر سے میں پیچھے آ گیا ہوں، تو وہ ان کی طرف نام بھی لینے ختم کر دیا. لیکن کل وہ خواجہ آصف کے ہاں گئے ہوئے تھے، انہوں نے پھر وہی باتیں دہرائیں کہ یہ جن لوگوں نے عمران خان کو حکومت دی تھی اور جو لے کے آئے تھے ان کا بھی محاسبہ، ان کا بھی یہ حساب اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح عمران خان کا ہے. تو اب یہ دوگلی گفتگو ہے، کبھی کچھ، اس بارے میں اب آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ حکمران آنے والوں کو یا رہنے والوں کو ایسی باتیں کرنی چاہیے کہ عوام نہ یہ سمجھیں کہ ان کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، نہ زبان ہے؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو بنتے ہیں میری نظر میں. ایک تو یہ ہے کہ
किसी भी पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे वोट लेने का हौसला नहीं है। या तो ये कहना है जी हमने इस अरसे में ये किया, हमें वोट दीजिए, आइंदा इससे बेहतर करेंगे। वो उठ रहा है, वो 2 साबिक चीफ मिले हुए हैं उन्हें, या 3 गिन लें अगर, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी जो रिटायर्ड, चीफ जस्टिस वो भी जो रिटायर्ड, और चीफ ऑफ ISI जो वो भी रिटायर्ड। भाई ये अब वो सब इसी पे ही खेल रहे हैं, मुड़ मुड़ के वो उनको या बाजवा याद आ जाता है या फैसल याद आ जाता है कि वो अब उन्हें भी पता है कि रिटायर बंदा कुछ कर नहीं सकता और वो जवाब दे नहीं सकते। हम जलसे करेंगे, हम लाख आदमी के सामने जो भी कह देंगे वो मान लिया जाएगा, वो अपना डिफेंस कर नहीं सकेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा जो है कि कारकर्दगी मतलब वाला तो सिलसिला है नहीं किसी के पल्ले, और इसी तरह वो ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया हुआ है कि बस वो हमें तो 22 ग्रेड के एक इस चीफ ने काम नहीं करने दिया, 21 ग्रेड के इस DGSI ने नहीं काम करने दिया। अब आप बताइए कि वो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए, जो बंदा या वजीर आजम होते हुए एक 22 ग्रेड के अफसर को काबू ना कर सके, मैं कहता हूँ फिर उसको ये इस काम को छोड़ के कोई और काम कर लेना चाहिए। अच्छा, अब खान साहब, ये दूसरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी है जिसने तकरीबन अपने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रखी थी, उसमें से बिलावल भी चले गए, तो भाई जरदारी साहब भी चले गए, और बातें हो रही हैं जी कि जरदारी साहब ने जो कहा है ना कि ये अभी बच्चा है, ये समझ रहा है सियासत को, तो उस पर उनकी को आपस में ठन गई है। आपके जरिए क्या कहते हैं? मैंने इसको मैं बहुत कुछ संजीदा नौयत की बात नहीं समझ रहा हूँ। उनकी इंटरेक्शन हो रही है, फैमिली फंक्शन था दुबई में जिसके लिए सारी फैमिली वहां गई हुई है। फरियाल तालपुर भी वही हैं, सनम भुट्टो भी गई हुई थी, और आसफा भी गई हैं, जरदारी साहब भी हैं। अच्छा, लेकिन उसका वो मुझे भी यानी जरदारी साहब का बयान जो है ना इतना उस लेवल का नहीं लगा जिस लेवल का होना चाहिए। ठीक, कि या तो एक तरफ तो बिलावल को वजीर आजम के उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहा है, और सबसे बढ़कर ये बिलावल बजाते खुद अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हैं। ठीक है, इन हालात में कोई भी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को की मार्केट खराब नहीं करती। लेकिन जरदारी साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा है ना कि वो अभी बच्चा है, सीख रहा है, तो ये वेव जो गई है ये किधर ले जाएगी? उसकी अपनी प्रोडक्ट का उन्होंने खराब करने की बात की है। देखिए, अभी उनके पास यानी जो बिहाइंड द सीन एक और भी डिस्कशन हो रही है और ऑफर्स इधर उधर हो रही हैं कि अगर तो पीपल्स पार्टी को अक्सरियत नहीं मिलती तो अगली बारी फिर सदर जरदारी। ठीक, हाँ जी, उनको ये भी दिखाया जा रहा है कि चलो जी वजीर आजम ना बने तो आपको सदर फिर बनाया जा सकता है। अच्छा, नहीं वकील साहब, आप मुझे ये बताएं कि अब 16 माह की हुकूमत तो इन्होंने मिलकर की ना, और उसमें जरदारी साहब और बिलावल ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम है, हमने बढ़ाया इसको। अच्छा, इसमें कोई पसे पर्दा ये इनके को आपस में तय तो नहीं था कि आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाएगा? एग्रीड तो शायद नहीं था, लेकिन जरदारी साहब का परसेप्शन ये था कि मुल्क की इकोनॉमी की वो हालत हुई भी है जिस तरह कुत्ते मिलकर रजाई भी कर देते हैं। तो उन्होंने ये सोचा हुआ था कि जनाब ये इनसे संभलेगा नहीं, फ्रंट लाइन पर ये होंगे, इल्जामों की बरसात इनके ऊपर होगी और अगली दफा हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। ये 16 माह का अरसा जो है ये बिलावल भुट्टो की रूनुमाई की तकरीब चल रही थी। आप भी देखें, वो ऐसे हवाई जहाज को रक्षा बनाया हुआ था उन्होंने कि वो ताकि बैरूनी दुनिया में उनका कोई चेहरा मोहरा बन जाए। उनको पता कि कौमी असेंबली तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो जो ताकत के घर है ना बड़े वाले काले और सफेद, वो उन तक रसाई चाहते थे कि उनकी नेटवर्किंग हो जाए, रेपो बिल्डिंग हो जाए। और एक एलिमेंट और भी था जो हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, वो उनकी उम्र का मसला था कि जरदारी अपना बिलावल भुट्टो जरदारी अभी तक 35 साल के नहीं हुए थे, वरना यकीन कर लें कि आसिफ जरदारी ने उनको अबूरी वजीर आजम बनवा देना था, क्योंकि कानून में 73 के आइन में वजीर आजम के लिए 35 साल उम्र की शर्त है। अब वो पूरी हो चुकी है, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि अगर सदारत जो है पीपल्स पार्टी के हाथ नहीं आती तो फिर वजारत उस्मा को उम्मीदवार वो उतार लाएंगे बिलावल भुट्टो को, अगर नंबर पूरे हुए और रिजीम
चेंज करने वाले राजी हुए। जी अमाइन साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो इलेक्शन मुहिम है वो पीपल पार्टी चला रही है, नून लीग चला रही है, तहरीक इस्तेकाम चला रही है, और जमात इस्लामी के बहुत बहुत बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, चाहे वो इंतखाबी नहीं हैं, वो धरने के हैं, वो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई के बारे में हैं। तो इस जगह पे पूरे पाकिस्तान में उनकी एक किस्म की कैंपेन चली हुई जमात इस्लामी की, और बड़ी मुनज़्ज़म और बड़ी अच्छी गैदरिंग होती है। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये जो इस वक्त सिलसिला शुरू है, क्या इसका कोई इलेक्शन में कुछ पता चलता है इन बड़े बड़े जलसों से या कम जलसों से? देखिए, जलसा जहां तक है, कम से कम ये तो एक है ना जी कि एक प्रेशर तो उस पर बिल्ड होता है, प्रेशर तो किया जाता है, दिया जाता है कि जी मेरे पास इतने लोग हैं, या एक दिखावा हो या जिस तरह भी हो, चाहे जिस तरह भी लेके आया जाए, कम से कम वो एक प्रेशर होता है, कम से कम उस जगह पे जहां वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाया जाता है जी कि हम भी हैं इस मैदान में। अब मैदान में जो होना वो सिर्फ अवामी यानी पजीराई खाली उसी के सर पे नहीं, जिस तरह अभी फरमा रहे थे और कह रहे थे जी कि तीनों लीडरान जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान हैं वो तीनों नाअहल हैं, और नाअहली में अभी अपना यानी वो तो अपनी फाइट कर रहे हैं। अब मामला ये है जी कि एक जमात यानी दो जमातें तो ऐसी हैं जो अपने आप को इस दौड़ में शामिल कर रही हैं, इस दौड़ का हिस्सा समझ रही, मगर एक जमात जिसकी सरबराही तरीन साहब कर रहे हैं, आपको भी पता है कि वो सिर्फ कंधा देने के लिए, वो इक्तदार शायद ना बल्कि 100% है, शायद इक्तदार उनके लिए ना तो कोई आसान होगा ना उन्हें मिलेगा, क्योंकि उनकी तो अपनी सीटें नहीं है, और फिर जैसे फरमाया जी कि खुद भी नहीं, वो सिर्फ एक कंधा होगा, जिस तरह भी झुका होगा जो भी पार्टी जिसके साथ इनकी डील होती है। बाकी फिर वही बात है जी कि ये जो कल कर्क में हुआ, उसके अलावा जो केपीके में जो जिस तरह से अवाम निकले हैं और जिस तरह से उन्होंने आगे से रिएक्ट किया है, एहसान साहब बात एक बहुत बड़ी है, ये एक उस तरह की एक जैसे कह लेना कि अवामी मज़ाहमत है। अब उस निज़ाम के खिलाफ, उस ऐसे सिस्टम के खिलाफ लोग जाना चाहते हैं, अपनी हक राय दही जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। जहां तक यानी इस चीजों का असर नीचे की नहीं ऊपर की सतह पे भी है। आज अगर देखा जाए तो हर जगह ये शऊर कम से कम किसी हद तक, हम उसको लीडर माने या ना माने, उसको अगर बच्चा भी कह दें तो चले, बच्चे में भी ये चीज तो है कि पीपल्स पार्टी में इख्तलाफ दोनों बाप बेटा का किस चीज पे जो बज़ाहिर जो नजर है वो यही है कि वो भी यही कह रहा है, बिलावल भुट्टो भी यही कह रहा है कि जो प्लेइंग फील्ड है वो सबके लिए लेवल होनी चाहिए, वो सिर्फ एक हिस्से के लिए लेवल नहीं, और उसमें इमरान खान को भी हिस्सा देना चाहिए। ये भी तो एक किस्म की मज़ाहमत है, और उसी मज़ाहमत का हिस्सा है जो कम से कम एक अवाम की तरफ से आ रहा है, जो एक शऊर उठ रहा है। अब वो बातें उस तरह से तो हो नहीं सकती जिस तरह से पहले हुई थी, अब बातें किसी और तरह हो रही हैं। अब इलेक्शन में ये सिर्फ इलेक्शन वोट का नहीं होगा, ये एक ठोस अपनी राय का होगा, और उसमें एहसान साहब कभी कभी डर लगता है कि ये जो जलसे या जिस हद तक ये जिस तरीके से ये अपने आप को यानी एक अपना जोर जाहिर किया जा रहा है, ये कहीं जोर किसी गलत रास्ते में या गलत तरफ ना चले जाए। जब ये जलसे होते हैं तो इस पे कितना सरमाया खर्च होता है। अब तो पहले तो खाने नहीं खिलाए जाते, अब तो खाने भी खिलाए जा रहे हैं। ये किसी का भी जलसा हो उसमें खाना भी होता है, तो बाकी ये वाक़े तो होते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये कहाँ खड़ा है? ना तो किसी को खानों से रोकता है, ना किसी को किसी बात से रोकता है, लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो वो कहते हैं आपके इंटर पार्टी इंटर इलेक्शन ही नहीं हुए, तो इसलिए आपको पहले ये इलेक्शन करवाएं, उसके बाद आपको देखते हैं कि आपको सिंबल भी मिलना है कि नहीं मिलना। तो ये दोहरी है। बाकी आप मुझे बताएं, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं क्या उनके इलेक्शन कभी होते हैं? सिर्फ एक जमात इस्लामी वाहिद पार्टी है जो कि इलेक्शन कराती है। इस बारे में आपकी क्या राय है? सर, अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन के जो मौजूदा जो अरकान है या जो मौजूदा उनकी क़यादत है या जो उसके ओहदेदार हैं, नहायत ही गंदा किरदार अदा कर रहे हैं, नहायत ही एक बुरा यानी अपने आप को इलेक्शन कमीशन कम से कम एक जो आज़ाद अदारा था, कहीं पे आज़ादी नजर नहीं आई। और एहसान साहब, इससे ज्यादा और क्या मिसाल हो सकती है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनकी तस्लील की गई, आइन की तस्लील की गई, आइन को बिल्कुल ही एक साइड पे फेंक के और जिस तरह अपने आप को उन्होंने चाहा करवाया। और एहसान साहब, आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे थे, बात तो ये कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये जो केयर टेकर हुकूमत है ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है,
इस पे कोई अमल दरामद नहीं है, इस पे कोई सुनवाई नहीं है, हालांकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और इस पे किसने एक्शन लेना था? ये आपके इलेक्शन कमीशन ने। जब वो ऐसी यानी कोई रवश इख्तियार करेगा तो फिर सोए अफसोस के फिर ये तो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं ना जी, के वहां खाना खिलाया गया, वहां पे कोई इतने लोगों को पैसा दे के लाया गया या इतना पैसा खर्च किया गया। जब आपके आइन की पामाली इतने बुरे अंदाज से की जा रही हो, आइन को माना ही ना जा रहा हो, तो ये तो सर इनके पास तो बहुत सारे हीले बहाने होते हैं। ये तो कह देते हैं जी कि हमने अपने कोई दादा का 40वां किया था या दादा की कोई बरसी की थी तो उस पर खाना किया, ये इस तरह और बहुत सारी शक्लें और बहुत सारे नाम दे देते हैं। देखने वाली बात यह थी कि जी जहां आपका कानून स्टैंड ना कर रहा हो, आपका आइन स्टैंड ना कर रहा हो, और जहां पे सिर्फ शख्सियात स्टैंड कर रही हो, वहां पे आप किस तरह की अखलाकियात को आप देखना चाह रहे हैं, यानी किस तरह का आप समझ रहे कि अखलाकियात वहां पे कोई ऐसा किरदार अदा करेंगी कि जो बाकी लोगों के लिए मिसाल हो। एहसान साहब, डर इसी चीज का कि ये मज़ाहमत जो है ये किसी और शक्ल में ना चली जाए, कोई और रुख ना इख्तियार कर ले। अच्छा, मुकीम अहमद खान साहब, आप ये क्योंकि आखिरी लम्हात हैं तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत का जो काम है वो कर रही है या नहीं कर रही, या उससे आगे तजावज़ कर रही है, इसलिए नजर नहीं आ रहा यहाँ इलेक्शन? सर वो वजीर आजम साहब जो है ना हमारे, वो अपनी रनिंग पूरी कर रहे हैं। अब अच्छा। आप देखिए वो उन्होंने भी उसको चिंची रक्षा बनाया हुआ जहाज को, कि उनको बस ये पता लग जाए कि कहीं खाना अच्छा पका हुआ है तो वो जहाज लेके उस मुल्क पहुंच जाते हैं। अजीब गरीब सूरत हाल क्रिएट की हुई है उस बंदे ने कि ना न हाथ बाग पर है ना पा है रकाब में। तो मतलब जो करने के काम है वो नहीं करने, वो बस फोटो सेशन है, दौरे हैं, या वो फजूल किस्म की मीडिया टॉक वो बंदा रख लेता है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो अदारे बेच रहे हैं, अदारे तो बेच रहे हैं ना। वो कौन सा इदारा बिका है भाई? अभी तक ये सब जबानी कलामी है। हम ये भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन के बाद से ये सुन रहे हैं कि जी वो ये इदारे खजाने पे बोझ हैं, इन्हें हम डिस्पर्स कर देंगे, हम इन्हें डिस्पोज ऑफ कर देंगे। वो आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ, और ये अब देखते हैं कि फवाद साहब इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं। वो कह रहे हैं जी PIA वाला बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है, बट ये सिर्फ बातें ही बातें हैं। नहीं, फवाद साहब का एक मसला तो आज हल हो गया ना, उनको ने हर चीज़ से बरी कर दिया नैब ने कि ये इनके साथ ठीक हैं, इनके मुताबिक हैं। तो इस तरह ये हुकूमत में आने से इन लोगों के मसाइल तो हल हो रहे हैं ना जी। वो इसे कहते हैं ना कि सैया बने कोतवाल अब डर कहेगा। अच्छा, हमायूं साहब, आखिरी 1 मिनट है, इसमें आप कौम को कोई पैगाम दे दें कि इलेक्शन हो तो ये किन लोगों को वोट डालें। अगर इलेक्शन नहीं होते तो कौमी हुकूमत बन जाने से क्या मुल्क में बेहतरी आएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि कौमी हुकूमत का ये कुछ राइट टाइम है। हो सकता है जी कि अगर राइट टाइम होता तो कोई बेहतरी आती, आज नहीं। आज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसमें कोई कौमी हुकूमत का या कोई ऐसा। आज तो हर शख्स अपनी अपनी सिमत दे चुका है, अपने अपने अंदाज में एक्सपोज हो चुका है। आज कैसे इन लोगों को इकट्ठा करेंगे जो एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक चले गए हैं? आज किस तरह उन जमातों को इकट्ठा किया जाएगा? आज ये टाइम नहीं है। आज इलेक्शन की तरफ जाएं, पुरअमन इलेक्शन हो, कोई अच्छा सा रास्ता दें सबके लिए। बाकी जमातें सारी इकट्ठी हैं, एक इमरान खान ही अलग है ना, बाकी तो जितनी ये टांगा पार्टियां सारी इकट्ठी है। पिछले 16 माह उन्होंने हुकूमत की है, मुल्क को लूटा है, इसलिए कोई दो राय तो है कोई नहीं। 2 ही चीजें हैं, या इमरान खान या बाकी सियासी पार्टियां हैं। नहीं तो खाली इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कौमी हुकूमत क्यों बनाए जी? ये भी तो वोटर नहीं डाल रहे। वोटर की तरफ जाएं। अगर इमरान खान इस चीज को कल को एक्सेप्ट करता है जी कि मैंने किसी के साथ इलाक करना है, तो उसकी राय होनी चाहिए जी, उसकी स्वाबदीद होनी चाहिए। ये तो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उसके लिए फिर उसके बाद कोई ऐसे लोगों को ले। यानी ये जो केयर टेकर हुकूमत बनी है, इसमें कौन से, हमने सुना था जी कि टेक्नोक्रेट आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे जो अपने अपने मामलात में जो स्पेशलिस्ट हैं। आज मुझे उठा के दिखा दीजिए कोई ऐसा शख्स जो उस महकमे में कोई उसका कोई स्पेशलाइज हो, किसी किस्म की कोई अहलियत हो। इसी तरह की कल को कौमी हुकूमत भी बनती, कौमी हुकूमत में भी नवाजा जाएगा, कोई इस तरह के अहल लोग नहीं होंगे। खुदारा ऐसा कदम उठाने से पहले कम से कम ये जरूर सोच लीजिए ये ना हो कि साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुकीम खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। अब फैसला करना ने अवाम ने
کہ میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات اس کا فیصلہ آپ کریں.